Hello students, I'm Dhodi Vasanti. Today we will learn about the value of gravitational constant in 11th physics in our chapter number 8 gravitation. Okay, so our next topic is, I again repeat, our next topic is to find the value of gravitational constant g. To find the value of gravitational constant g, और तो ये जो क्वेश्चन है उसको एक और क्वेश्चन के हिसाब से भी पूछा जाता है, विच इज explain the experiment of Cavendish for find the value of capital G. ओके, सो ये दो टाइप्स के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज IMP for 3 marks, तो जिसमें है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G और एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट ऑफ कैवेंडिश फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ G. क्योंकि इन यूनिट 8 यहाँ तक हमने जो थियोरी देखी है उसमें हमने जो कैपिटल G की वैल्यू है वो तो हमने कांस्टेंट ही ली है, विच इज हाउ मच, G इज इक्वल 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, सो इंटू मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर. ये हमने फिक्स वैल्यू ले ली है, ठीक है. लेकिन ये वैल्यू कैसे आई है, किसने फाइंड की है, तो वो अब हम डिटेल में सीखेंगे. ओके, सो हम थियोरी की शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने ये वैल्यू डायरेक्टली एक्सेप्ट की है. ओके, लेकिन कैसे आई है वो तो हम देखते हैं अभी. तो फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G which is determined experimentally, and this was first done by the English scientist Henry Cavendish in 1798. So हम थियोरी भी साथ में लिखते ही जाते हैं, ठीक है. थोड़ी लंबी थियोरी है लेकिन IMP है 3 मार्क्स के लिए, तो हम वो लिखते ही जाते हैं. ओके, सॉल्यूशन के हिसाब से हम लिख से जाते हैं यहाँ पे. तो द वैल्यू ऑफ कैपिटल G, मैं शॉर्ट में ही लिख रही हूँ, कैपिटल G विच इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैन बी determine experimentally and this was first done by, the value of capital G can be determined experimentally, and this was first done by English scientist Henry Cavendish in 1798. ओके, तो सबसे पहले जो इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी कैवेंडिश है उसने कांस्टेंट जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट करके फाइंड की थी. अब उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी फिगर हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं. तो फिगर क्या है तो वो अभी हम देख रहे हैं, ठीक है. तो देखते हैं, फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ. तो this is the fine wire and this is the one bar, has a 2 and A and B. This is the fine wire and this is the one bar, has a 2 and, okay, A and B. Now two small lead sphere attached at its end.
two small lead sphere attached at the end of this bar like A, which is S1 lead sphere है ये, और यहाँ पे हुआ S2. ओके, तो ये है आपका S2. ओके, फर्स्ट a bar, this is the fine wire and this is bar. Okay, this is bar. Here is the point O and यहाँ पे हम M ले लेते हैं. Okay, clear? So the bar AB has two small lead sphere like S1 and S2 at its two ends A and B. Okay, and this is the fine wire. Now what happened? Two large, again now take two large lead sphere. Take two large lead sphere and put or join same distance but opposite direction from the S1. Okay, now take big lead sphere and take two big lead sphere and brought to the close to this S1 and S2 from the equal distance but in opposite direction, like equal distance and opposite direction, these two big lead sphere like this. Okay, which is S1 dash and this is S2 dash. Clear? So हम ये जो फिगर हमने बनाई है उसी के हिसाब से हम यहाँ पे लिखते भी जाते हैं. ओके, कैसे करना है, कैसे यहाँ पे थियोरी बनती है, ओके, वो हम सब यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं. तो फर्स्ट, अ बार ए बी हैज टू स्मॉल, अ बार ए बी हैज टू स्मॉल lead sphere attached at its two ends. Okay, the bar, next, the bar is suspended from a rigid support by a fine wire. Okay, a bar AB has two small lead sphere like S1 and S2 attached at its two ends. Okay, its two ends like A and B. Okay, now the bar is suspended from a rigid support by a fine wire. The bar is suspended from a rigid support by the fine wire. Clear? Now what happened? We brought two big lead spheres near the two small lead sphere. Okay, then what happened? This big sphere S1 dash and S2 dash is act on small S1 like this, ये और ये S2. Okay, now what happened? ये जो बड़ा बॉल है, बड़ा लीड स्पीयर है, वो छोटे लीड स्पीयर पे अट्रैक्ट करेगा. ओके, और ये यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा. देन व्हाट हैपन? व्हेन S1 is act on S1, S1 dash is act on S1 and S2 dash is act on S2, then by the gravitational force, then the generate is torque. Then what generate? The torque is generate. Then what happen? Here is generate torque, here is also generate the torque, and the effect of this torque, what happen? The fine wire R goes to twist. When S1 is act on S1 dash is act on S1, S2 dash is act on S2, then it gives torque
the generate between these two sphere is torque, and this effect of this, due to this torque the fine wire are going to the situation in twist. मतलब ये अगर ऐसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे तो ये फाइन वायर भी इस डायरेक्शन में ट्विस्ट होगा. ओके, लाइक दिस. देन व्हाट हैपन, द वायर, फाइन वायर आर गोइंग टू ट्विस्ट इट. तो ये कब तक ट्विस्ट होता रहेगा? ये जो फाइन वायर है ये कब तक ट्विस्ट होता रहेगा? तो ये ट्विस्ट ड्यू टू दिस टॉर्क, तो ये कब तक ट्विस्ट होता रहेगा? और ये ट्विस्ट किसके बराबर है, किसके लिए होता है? ओके, तो जब तक इस पे टॉर्क लगा रहेगा तो ये ट्विस्ट होता रहेगा, और ये ट्विस्ट होता रहेगा. तो हम यूनिट 5 में सीख चुके हैं कि अगर कोई भी, ये दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, राइट, तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो दूसरा भी उसका अपोज क्लियरली करता है. तो व्हेन द टॉर्क इज एक्ट, द टॉर्क इज जनरेट, ड्यू टू दिस टॉर्क द फाइन वायर आर गोइंग टू ट्विस्ट इट. Then what happen? The opposite restoring torque in the fine wire are generate. Restoring torque are generate in this fine wire, which is the opposite of the twist. Okay, तो उसका वो opposite करेगा. That means what? जितने ट्विस्ट इसमें होते जाएंगे उसके हिसाब से उसका रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होता जाएगा. देन व्हाट हैपन, वी कैन राइट रिस्टोरिंग टॉर्क टोड एज प्रोपोर्शनल टू ट्विस्ट क्यू. तो इन इनिशियल कंडीशन द फाइन वायर आर इन क्लियरली लाइन. ओके, बट आफ्टर द जनरेट टॉर्क एंड ड्यू टू दिस टॉर्क द फाइन वायर गोइंग टू ट्विस्ट, यानी कि उसके बाद हमें कुछ ऐसी फिगर मिलेगी. ओके, तो ये जो ट्विस्ट हो रहे हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे? तो रिस्टोरिंग टॉर्क के प्रोपोर्शनल. क्योंकि आप देखो, जैसे ही हमने यहाँ पे सपोर्ट, द बार इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट बाय अ फाइन वायर, तो उसके बाद क्या, अ बार ए बी हैज टू स्मॉल लीड स्पीयर अटैच एट इट्स टू एंड्स लाइक ए एंड बी. यहाँ पे S1 और S2 को दो एंड पे लगा दिया है हमने. ठीक है, उसके बाद क्या, तो टेक टू big lead spear like S1 dash and S2 dash and brought near to the equal distance but in the opposite direction of the S1 and S2. Then what happened? The S1 dash is act on S1 and S2 dash is act on S2 by the gravitational force. Then the torque is generated. Due to this torque, the figure are going to like this situation, rotate above this. ओके, ये फिगर यहाँ से, ये फिगर यहाँ से, तो ऐसे ये फिगर घूमने लगेगी, ये पूरी सिस्टम घूमने लगेगी. देन व्हाट हैपन, ड्यू टू दिस टॉर्क दिस फाइन वायर आर गोइंग टू ट्विस्टेड. दिस फाइन वायर आर गोइंग टू ट्विस्टेड एंड द रिस्टोरिंग फोर्स आर अपोजिट दिस ट्विस्ट. And this restoring force are going to opposite this twisted, and also we can say that which is the proportionally equal, which is the proportionally to twist. क्या होगा? क्लियर? तो समझ में आ रहा है कि S1 डैश जब S1 पे एक्ट करेगा बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है तो उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट करेगा वहां पे, जिसकी वजह से टॉर्क जनरेट होगा. और ये टॉर्क की वजह से क्या, तो बार जो है हमारा, फाइन वायर जो है वो ट्विस्ट होने लगेगा. ये ट्विस्ट होने लगेगा, दैट मीन्स व्हाट, तो उसका अपोज करने वाला जो फोर्स है, टॉर्क है, ये टॉर्क की वजह से ये ट्विस्ट हो रहा है, तो उसका अपोजिट टॉर्क यानी रिस्टोरिंग टॉर्क इसमें जनरेट होगा. क्लियर? तो कितना जनरेट होगा, तो जितना ये ट्विस्ट होता जाएगा उतना रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा. दैट मीन्स वी कैन राइट टो डैश इज प्रोपोर्शनल टू थीटा. थीटा इज द ट्विस्टेड ऑफ द फाइन वायर, ट्विस्ट ऑफ द फाइन वायर. क्लियर? सो हम यहाँ पे लिखते जाते हैं. नाउ कहाँ तक लिखा, अ बार AB हैज टू स्मॉल लीड स्पीयर अटैच एट इट्स टू एंड्स लाइक S1 and S2.
This bar is suspended from a rigid support by a fine wire. This bar is suspended from a rigid support by a fine wire. Now take two large lead sphere. Now take two large lead sphere are brought close to the small ones, but on opposite side as shown in the figure. Now what? Take two large lead sphere. Take two large lead spheres like S1 dash and S2 dash are brought close to the small ones. Are brought close like same distance. Brought close to the small ones, but on opposite side. But opposite of the small ones. Okay, as shown in the figure. Clear? Now what happen? The big spheres attract the nears. This big spheres is attract the near small spheres. This big spheres attract the nearly small sphere by equal and opposite force. Okay, so we can write this big sphere attract the near nearly by small sphere small sphere by equal and opposite force. ओके, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जैसे हमने फिगर में देखा. क्लियर? सो देन व्हाट हैपन? शी हियर when S1 dash is attract with S1, then what happen? The gravitational force is generated. Due to this force there are what generate? Torque is generated. Okay, so that we can write here so that the torque which is generate and equal to the so that the torque is generate and which is equal to the force F, and between these two spheres there is a torque is generated and which is equal to the force time the length of force time the length of the to the bar AB. Clear? Now what happened? Now see the figure again. S1 dash and S2 are attract with the F and then torque is generated. Due to this torque, what happened?
due to this torque, what happened? So due to this torque, the suspended wire gets in twisted. What happened? Due to this torque, the suspended wires gets twisted till such time as a restoring torque. क्योंकि जितना ट्विस्टेड होगा उतना रिस्टोरिंग फोर्स उस पर लगेगा, जितना ट्विस्टेड होगा तो उसका अपोजिट करता हुआ उसको रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा. ओके, टू दी वायर्स इक्वल दी ग्रेविटेशनल टॉर्क. ओके, यहां से ग्रेविटेशनल टॉर्क लग रहा है उसको जितना ग्रेविटेशनल टॉर्क लगेगा उसके हिसाब से ये ट्विस्ट होगा, और जितना ट्विस्ट होगा उसके हिसाब से रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा. समझ में आ रहा है? हम वापस समझने की ट्राई करेंगे. ओके, उसके हिसाब से लिख लेते हैं यहाँ पे. तो ड्यू टू दिस टॉर्क, due to this torque, the suspended wires gets twisted till such time as the restoring torque of the wires are equals the gravitational torque. चलो समझने की ट्राई करते हैं. ड्यू टू द टॉर्क, the suspended wire gets twisted till such time as the twisted restoring torque of the wires are equals the gravitational torque. That means what? See here, due to this torque, यहाँ पे जनरेट हुआ टॉर्क. ड्यू टू दिस टॉर्क, the suspended wire twisted till such a टाइम एज रिस्टोरिंग फोर्स, उसका अपोजिट टॉर्क जो आएगा रिस्टोरिंग टॉर्क इन दी वायर्स आर इक्वल्स टू दी ग्रेविटेशनल टॉर्क्स. यहां से जो लग रहा है वो इक्वल उसका होगा. ओके, क्लियर? सो वी कैन से हियर द ट्विस्ट लाइक दिस. ओके, एक बार वायर में ट्विस्ट आ गया, फिर वो हमें सीधी नहीं मिल सकती, तो उसमें ट्विस्ट यानी कि एंगल के हिसाब से मिलेगा. तो दिस एंगल कैन बी डिनोटेड बाय द थीटा, एंड थीटा वी कैन से दैट थीटा इज द एंगल ऑफ द ट्विस्ट इन द सस्पेंडेड वायर. क्लियर? सो दिस थीटा इज इक्वल टू द और प्रोपोर्शनल टू द रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल टॉर्क. सो पहले से हम देख लेते हैं यहाँ पे व्हाट हैपन. अ बार ए बी हैज टू स्मॉल लीड स्पीयर अटैच एट इट्स टू एंड्स. एक बार टेक करो जिसके टू एंड्स पे दो लीड स्पीयर लो, S1 एंड S2. क्लियर? नाउ टेक टू बिग lead sphere like S1 dash and S2 dash and brought nearby these small spheres S1 and S2 at equal distance but in opposite direction of the S1 and S2. Okay, now what happened? The S1 is attract with S1 dash is attract with S1 with gravitational force F, and the reason, and therefore the torque between these two spheres which are generated, which is gravitational torque. Therefore due to this torque what happen, इस torque की वजह से क्या होगा? तो the suspended wire gets twitched. Okay, and this twist and this for this twist the angle theta is the angle of the twist in suspended wire. This twisted are equal or proportional to the restoring torque generated in the suspended wire due to the gravitational torque.
क्लियर? सो समझ में आया कि कैसे यहाँ पे ये फिगर वर्क करती है। पहले दो स्फीयर को लगा लो, उसके बाद बड़े स्फीयर लगाओ उसके नियरली, तो S1 डैश S1 पे एक्ट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से, तो उसके बीच में क्या होगा जनरेट, तो टॉर्क जनरेट होगा। दोनों के बीच में सेम प्रोसेस हुई, तो ये जो टॉर्क है उसकी वजह से क्या हुआ, तो ये फिगर पूरी ऐसे घूमने लग जाएगी ऐसे, ओके। तो जिसकी वजह से ये वायर जो है वो ट्विस्ट होने लगेगा, और ये कितना ट्विस्ट होगा, तो जितना उसको यहाँ से ग्रेविटेशनल टॉर्क मिलेगा, ओके, उसके हिसाब से ट्विस्ट होगा। तो जितना ट्विस्ट होगा उतना उसका अपोजिट फोर्स, अपोजिट टॉर्क, क्योंकि टॉर्क की वजह से वो ट्विस्ट हो रहा है, तो उसका अपोजिट टॉर्क भी आएगा। क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है, हमने डिस्कशन किया, दो ऑब्जेक्ट है, तो एक उस पर फोर्स लगे तो दूसरा ऑब्वियसली उस पर फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे जितना वो ट्विस्ट हो रहा है तो उसका अपोजिट फोर्स, तो रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा यहाँ पे। क्लियर? ये यहाँ पे फिगर हमें समझनी है, और जो ट्विस्ट के हिसाब से जो एंगल मिलता है उसको हम थीटा के हिसाब से डिनोटेट करेंगे। क्लियर? नाउ व्हाट हैपन, अब ये जो है यहाँ पे ग्रेविटेशनल टॉर्क मिल रहा है और उसका रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हो रहा है, तो ये कब तक होता रहेगा, ऐसी फिगर कब तक होती रहेगी, तो जहां तक रिस्टोरिंग फोर्स टो डैश जो है इज इक्वल ग्रेविटेशनल टॉर्क इक्वल नहीं हो जाता, तब तक ये फिगर ऐसी घूमती रहेगी। क्लियर? तो यहां तक हमें ये फिगर समझनी है, ये फिगर पे से ही हमें अब इक्वेशन लिखना है। ओके, तो कहाँ पे हम रुके थे उसी के हिसाब से हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देख लो, ड्यू टू दिस टॉर्क द सस्पेंडेड वायर गेट्स ट्विस्टेड टिल सच एज टाइम रिस्टोरिंग टॉर्क इफ द ऑफ द वायर्स आर इक्वल द ग्रेविटेशनल टॉर्क। क्लियर? तो हम यहाँ पे अब लिखने की शुरुआत कर रहे हैं। तो ओके, टॉर्क जनरेट हो गया, उसके बाद द थीटा in the figure theta is the angle of the twist of the suspended wires. Okay, in the figure theta is the angle of twist of the suspended wire. Clear? Now from the figure suppose अब हम इक्वेशन फॉर्म के हिसाब से लिखेंगे। ओके, इक्वेशन फॉर्म के हिसाब से लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो, सपोज capital M is the mass of big lead sphere and small m is the mass of small lead sphere. Clear? Now and लिखते जाते हैं हम यहाँ पे। तो from the figure suppose capital M and small m are the masses of the big lead spheres and small lead spheres respectively. Okay, now ये मास का हो गया। Now see here again, the distance between A2 S1 and A2 S1 dash, same here, distance between B2 S2 and B2 S2 dash, both are same, which is denoted by small d. So we can say that, or write A S1 is equal B S2 is equal small d. Okay, तो यहाँ से ये दोनों सेम ही आएगा, तो हम एक के हिसाब से ही लिखेंगे। So here A S1 is equal B S2 is equal small d. Clear? ये टेक किया है हमने। Now again see here the distance between 2 points A and B, which is small l. Take. Okay, and A B is equal small l.
टेक किया है हमने। क्लियर? चलो अभी क्या करना है, तो इक्वेशन जैसे हमने प्रोसेस लिखी है यहां से यहां तक, फिगर में होता क्या है शुरुआत से लेके एंड तक, वही हम इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट क्या होता है इसमें, तो जैसे ही हमने फर्स्ट स्फीयर लगा लिया S1 S2, उसके बाद हमने दूसरा स्फीयर टेक किया, तो दूसरा स्फीयर टेक करने के बाद क्या होता है, तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ओके, सो वही ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हम लिखेंगे पहले। तो the gravitational force between two lead spheres on AB बार। अब आप AB बार पे B के हिसाब से लो या A के हिसाब से लो। यहां पे देखो तो यहां पे है आपका S1 A B, B और A कोई भी पॉइंट पे ले सकते हो। ओके, तो ये दो स्फीयर के बीच में लो या फिर ये दो स्फीयर के बीच में लो, दोनों आपका क्या होगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि F के हिसाब से आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, तो F इज इक्वल कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाय डी स्क्वायर। ये दोनों के बिटवीन ही हमें ग्रेविटेशनल फोर्स मिल रहा है। ओके, तो ये और ये आपका सेम ही रहेगा, कोई भी एक पॉइंट ले लो। ओके, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे लिख रहे हैं आपका इक्वेशन। तो ए बी बार इज F इज इक्वल G स्मॉल m इंटू कैपिटल M बाय डी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 दे दो। क्लियर? Now what happen? When the gravitational force act between these two spheres, then what generate? The torque, gravitational torque is generated. So again we can write, here the torque between two spheres on AB bar is, टॉर्क का इक्वेशन किसी को पता है, टॉर्क टो इज इक्वल, कितना टॉर्क जनरेट होगा, तो टॉर्क टो इज इक्वल जो इक्वेशन है F इंटू एल है। ओके, F इंटू एल, ये इसका फिक्स इक्वेशन है जो यूनिट 6 में आप शायद सीख चुके होंगे, अगर नहीं सीखे हो तो यूनिट 7 में वो आएगा। क्लियर? लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्टली लेंगे। तो द टॉर्क बिटवीन टू स्फीयर्स ऑन AB बार विच इज tau is equal F into L. So put the value. So we have the value of F. We have the value of F, which is G की वैल्यू हमें कितनी मिली आगे, तो G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाय डी स्क्वायर इंटू L रहेगा, वो हमें टॉर्क मिल गया। इक्वेशन नंबर 2 दे दो। क्लियर? नाउ व्हाट हैपन, देन सी हियर, ये दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल टॉर्क जनरेट हुआ। अब टॉर्क की वजह से क्या हुआ, तो दी सस्पेंडेड वायर, फाइन वायर गोज टू ट्विस्टेड। ओके, ट्विस्ट यानी एंगल यहाँ पे जनरेट होगा, तो वो एंगल कितना होगा, तो वो हमें लिखना है अभी। क्लियर? तो देयर आर रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि जैसे ही ये ट्विस्टेड होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स भी जनरेट हो जाएगा। सो द रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट इन दी फाइन वायर विच इज, लिखते हैं हम यहाँ पे, नाउ द रिस्टोरिंग फोर्स, टॉर्क is generate in suspended wires is torque, रिस्टोरिंग टॉर्क जो हम टो डैश के हिसाब से ले रहे हैं, टो डैश प्रपोर्शनल टू क्या होगा, थीटा। वाई, सो हम यहीं पे देख लेते हैं, जो ये इनिशियल पोजीशन में ये वायर है, ओके, तो उसमें जब ट्विस्ट आएगा तो वो हमें ऐसा मिल जाएगा। तो जितना ये ट्विस्ट होगा तो उसका अपोजिट
उसको रिस्टोरिंग के लिए फोर्स लगेगा. ओके, तो विच दिस इज रिस्टोरिंग टॉर्क विच इज टो डैश एंड द ट्विस्ट इज थीटा. थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट. ओके, एंगल ऑफ ट्विस्ट, क्योंकि इसमें एंगल मिलेगा. और आपको पता ही होगा कि अगर हम वायर ले ले, कोई भी वायर, उसको एक बार ट्विस्ट किया, फिर आप सीधा करने की ट्राई करो, तो उसमें हमें ट्विस्ट तो मिलते ही है. ओके, वो एकदम सीधा नहीं दिखता. सो ये आपको याद रखना है यहाँ पे. सो वी कैन राइट हियर टो proportional to theta. Okay, so take constant in this equation. So लाइक ये यहाँ पे जो फिगर बन रही है लाइट स्प्रिंग जैसी है, तो उसी के हिसाब से हम लेंगे यहाँ पे कांस्टेंट टो डैश इज इक्वल स्मॉल के इंटू थीटा. ओके, नाउ इक्वेशन नंबर 3, टो डैश इज इक्वल के इंटू थीटा, विच इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ व्हाट हैपन, तो हम कहाँ तक आ गए? ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट हुआ, जिसकी वजह से टॉर्क जनरेट हुआ, और टॉर्क की वजह से ये ट्विस्ट करने लगा. सस्पेंडेड वायर जो है ट्विस्ट के करने लगा, तो उसका अपोजिट फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ. अब क्वेश्चन ये है कि ये फिगर कहाँ तक ऐसी घूमती रहेगी? तो जहां तक टो डैश यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल ग्रेविटेशनल टॉर्क इक्वल नहीं हो जाता, तब ये पूरी जो फिगर है, पूरा जो सिस्टम है, वो बैलेंस में आएगा. तो वो अब हमें लिखना है. तो व्हेन फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ दिस सिस्टम. ओके, तो उसके लिए हम लिखेंगे, तो कब होगी? तो व्हेन दी रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू दी ग्रेविटेशनल टॉर्क. यहां से जो टॉर्क मिल रहा है उसके हिसाब से, क्योंकि यहां पे टॉर्क मिल रहा है तभी तो वो ट्विस्ट हो रहा है, और ट्विस्ट हो रहा है तभी तो उसका ऑपोजिट रिस्टोरिंग टॉर्क वहां पे जनरेट हो रहा है. क्लियर? So we can write here, so for equilibrium position of the system टो डैश इज इक्वल टो. ये इक्वेशन होना कंपलसरी है, तभी तो हमें वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में मिलेगा. क्लियर? ओके, सो वी हैव द वैल्यू ऑफ टो डैश लाइक के थीटा एंड टो. ओके, तो टो की वैल्यू क्या है हमारे पास? तो जी एम इंटू एम डिवाइड बाई डी स्क्वायर इंटू एल, ये हमारे पास वैल्यू है. ओके, नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. सो टो डैश यानी के इंटू थीटा इज इक्वल टू यानी G into capital M into M divided by D square into L. Okay. Then what we find in this theory? स्टार्टिंग से लेके हमने फिगर समझ ली, उसके हिसाब से लिख लिया है. ओके, ये अगर आपको यहाँ पे ये जो लिखना है वो आप बुक में से भी लिख सकते हो, हमने उसी के हिसाब से लिखा है. यहाँ पे मेन आपको ये फिगर समझनी है और फिगर पे से आपको इक्वेशन डिराइव करना है. तो व्हाट इज द टाइटल ऑफ आवर थियोरी? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G. हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें यहाँ पे किसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? तो कैपिटल G. ओके, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे. ओके, तो कैपिटल G इज इक्वल क्या मिलेगा आपको? तो इक्वेशन हम बनाते हैं, तो K इंटू थीटा, ये डी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, डी स्क्वायर डिवाइड बाई ये टर्म नीचे आ जाएगा, m इंटू एम इंटू एल. तो ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का इक्वेशन हो गया. अब ये इक्वेशन तक कैवेंडिश ने फाइंड कर लिया, वो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, जो हमने अभी फिगर के हिसाब से समझा है, ये एक्सपेरिमेंट किया, उसके हिसाब से यहाँ तक इक्वेशन उसने फाइंड किया. अब यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 3 देखो, तो यहाँ पे k इज इक्वल आपको क्या मिल सकता है? तो टो डैश डिवाइड बाई थीटा. ओके, टो डैश डिवाइड बाई थीटा, उसके हिसाब से इक्वेशन मिल सकता है. तो ये सारी जो वैल्यू है यहाँ पे G इज इक्वल के थीटा डी स्क्वायर बाई एम इंटू एल. ओके, तो इसमें अगर सारी वैल्यू एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी ही, राइट? तो कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंट किया, उसके हिसाब से वैल्यू रखी. वो वैल्यू हमारी बुक में अवेलेबल नहीं है, सो इसलिए हम डायरेक्टली लेते हैं, और उसके हिसाब से कैपिटल G की जो वैल्यू अब उसने फाइंड की है वो कितनी है? तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर, ये वैल्यू फाइंड की है, जिसको हम ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल
कांस्टेंट के हिसाब से जानते हैं और यही हमने एक्सेप्ट किया है। क्लियर? तो ये जो है इक्वेशन है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए, और दूसरा जो इक्वेशन है वो हम सीख चुके हैं, वो हम यहाँ सिर्फ पहले थियरी में डिराइव कर चुके हैं। वो F इज इक्वल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, उसके हिसाब से g की वैल्यू आप फाइंड करो तो F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2, ये एज इट इज इक्वेशन है। ओके, तो ये सिर्फ अभी हमने जानने के लिए ही लिखा है, ये थियरी में इसको लिखना नहीं है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये यहाँ से ये इक्वेशन के हिसाब से कैवेंडिश ने फाइंड की थी और वही हम यहाँ पे यूज करते हैं। और इसके हिसाब से जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा जाता है। तो ग्रेविटेशनल डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल G कैसे मिलेगा आपको? तो हमने अभी जो इक्वेशन लिखा G इज इक्वल F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2, तो F का क्या है ग्रेविटेशन इसका फॉर्मूला m1 L1 t माइनस 2, ये इसका F का फॉर्मूला है, वो आपको पता ही होगा, यूनिट 2 में हम सीख चुके हैं। R यानी L स्क्वायर बाई m2। चलो, तो m यहाँ पे 2 है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 यानी -1, m माइनस 1, फिर L1 और ये 2 तो L3 और t माइनस 2। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपिटल G क्या मिलता है आपको? m माइनस 1 L3 t माइनस 2। तो ये आपको इक्वेशन ग्रेविटेशनल फॉर्मूला का इक्वेशन मिलता है। सो स्टार्टिंग से हमने एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। मेन फिगर ही समझनी है कि दो ऑब्जेक्ट जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं अगेन। सस्पेंडेड वायर के साथ एक बार जॉइंट कर लो, उसके दो एंड पे दो ऑब्जेक्ट रख लो, लीड स्फीयर है। ओके, उसके अपोजिट और इक्वल डिस्टेंस पे हम दूसरा बिग स्फीयर लेंगे और ये जो है दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल टॉर्क जनरेट होगा। ये टॉर्क की वजह से सिस्टम पूरा घूमने लगेगा, जिसकी वजह से दी सस्पेंडेड वायर गेट्स फ्रॉम द ट्विस्ट एंड उसका अपोजिट करता हुआ रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा। और जब ये दोनों इक्वल हो जाएगी तो ये पूरी सिस्टम बैलेंस में आ जाएगी, जिसके हिसाब से ये पूरा जो प्रैक्टिकल किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, उसी के हिसाब से कैवेंडिश ने कैपिटल G जो हमारा टाइटल है की वैल्यू फाइंड की है। क्लियर? सो ये थियरी 3 मार्क्स में IMP है। आप अच्छे से पढ़ो, समझो और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो। थैंक यू।